Hello students, good morning. So previously we have already completed units and dimensions, and in the unit and dimensions we have already discussed about the various physical quantities with their symbol, units and dimensions. Okay, so let's start another new chapter, that is laws of motion. Laws of motion. Okay, so when we consider a body, then we find mainly two different characteristics. One is rest, another one is motion. Okay, and rest and motion both are studied with respect to a certain coordinate system. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ମୋସନ କୌଣସି ବଡିର ରେଷ୍ଟ ବା ମୋସନକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର। मेनली आम बॉडी लॉज ऑफ मोशन आम कौन पढ़ा मेनली दुईटा क्वांटिटी फर्स्ट आम जानवा दरकार। फर्स्ट हूँ कौन ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सेकेंड थिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आम मेजर करूचे इन सच केस we mainly found the frame of reference means it is a combination of two different things. First is coordinate system, another one is time or we can say that is watch. Okay, जो लॉज ऑफ मोशन बा गोटे बॉडी रो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करबा चाहूचे आइदर रेस्ट और मोशन प्रॉपर्टी को। रेस्ट और मोशन जानिबा को हेले हमको फर्स्ट कोन जानिबा दरकार ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जानिबा दरकार। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कोन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वॉच। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम जोटा तुम कहउछ स्थानांक ज्यामिति। ओके, जोटा तुम ऑलरेडी जानिछ कोऑर्डिनेट सिस्टम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। टाइम मींस और वॉच जोटा आम यूज करछे कहा को मेजर करिया पई ना टाइम को मेजर करिया पई। बॉडी रे जते मोशन बा बॉडी रे जते मोशन करूची बा रेस्ट अछि तार हम दीटा क्वांटिटी को मेजर करू। फर्स्टली जोटा हम कहउछे पोजीशन आ मूवमेंट रो टाइम। ओके, पोजीशन मोमेंटम दीटा जगह हम मेजर करि परिया, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। Okay, and all the quantities always depends upon time. Okay, जो क्वांटिटी हमें मेजर करया पई चाहू जे गोटे बॉडी रो मोशन हो बा रेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहू सबुडा कहा ऊपर डिपेंड करे ना टाइम ऊपर को हमें डिपेंड करूचे। जेहेतु टाइम ऊपर डिपेंड करूचे सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमें दुईटा पार्ट डिवाइड करले, गोटे हला कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गोटे हला टाइम रे। ओके, अगेन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आसुची ताको हमें तीनटा पार्ट डिवाइड करूचे। Coordinate system again divided into three main characteristics. One is one dimensional coordinate system, secondly हम कहउछे कोन ना two dimensional coordinate system, and thirdly we say that is three dimensional coordinate system. Okay, coordinate system that used to measure the position of any particle. Okay, जोटा हम simply represent करछे जदि one dimension ने भी तले एटी कोन रहिबो ना one variable जब वो टू डायमेंशन नउची तबने रे केतरा वेरिएबल रहिबो टू वेरिएबल्स जब हम थ्री डायमेंशन नउचे ताले एटी केते रहिबो ना थ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करिवो। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टाइम। ओके, then know first about the coordinate system. Coordinate system is further divided into three categories, that is one dimension, two dimension or three dimension. Okay, one dimension जब consider करछे, suppose हम first consider करिबा one dimensional coordinate system.
one dimensional coordinate system. Okay, one dimensional coordinate system means we can say it consists of mainly one variable. Okay, if a body moves along a straight line, okay, moves only along a straight line, then we can say it's only one coordinate changes. For example, I say suppose a body moves from A point to B point. Okay, then in such case, if I draw a coordinate system consists of three coordinates x, y and z. X, y and z. In x, y, z coordinate, the position of A is suppose x1. Okay, it is parallel to x axis. Position of B suppose x2. Okay, and if we observe this system, then we find there will be no change of y and z coordinate. Okay, एठी जो हम पोजीशन टा ड्रॉ करिचे पार्टिकल रो को कोऑर्डिनेट चेंज होची ना केवल x पोजीशन बा x कोऑर्डिनेट चेंज होची x1 पोजीशन रु x2 पोजीशन को चेंजेस आसुची जदि गोटे पोजीशन पार्टिकल गोटे कोऑर्डिनेट ही चेंज आसुची तले हम सेते बेले कहि पारे दैट इज ए वन डायमेंशनल मोशन. ओके, तले एठी मोर जो y और z कोऑर्डिनेट जदि देखो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम रे रिप्रेजेंट करबा तले एठी आसला x1 0 0 बस हम वैल्यू एठी नहीं जाओ y 0. ओके, एठी जब हम मेजर करबा कोऑर्डिनेट ता x2 y z. ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मोर आसला केते x1 y z. सेकंड कोऑर्डिनेट कोन आसुची ना x2 y z कोऑर्डिनेट आसुची. तले हम जदी ऑब्जर्व करिया एठी तले कोन चेंजेस आसुची ना केवल गोटे कोऑर्डिनेट ही चेंजेस आसुची जोटा x1 रु x2 को मूवमेंट करूची कने लाइन रे जो हम ड्रॉ करिचे लाइन ता काहा को पैरेलल अछि ना x एक्सिस को पैरेलल अछि. जेते एठी मोर कोन आसुची ना जे कोनसी गोटे कोऑर्डिनेट चेंज आसुची गोटे वेरिएबल चेंज आसुची तले एठी समय कहि परिबा दैट इज ए टाइप ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. Okay, so one dimensional motion means it mainly consists of one variable. One variable means only change of one coordinate takes place. Okay, गोटे कोऑर्डिनेट ही ता चेंज आसीबो. देखो अदर दिटा जो कोऑर्डिनेट अछि y और z कोऑर्डिनेट दिटा जाक मोर कोन अछि ना अनचेंज रहउछि वेरी करूछि कि ना ओनली x वेरी करूछि x1 पॉइंट रु x2 पॉइंट को. ओके, ताले मोर वेरिएबल केतरा आसुची ना गोटे वेरिएबल एग्जिस्ट करूची जेतु गोटे वेरिएबल एग्जिस्ट करूची ताहले हम कहि पारे दैट इज ए वन डायमेंशनल मोशन. ओके, सो वन डायमेंशनल मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच देयर विल बी चेंज ऑफ वन कोऑर्डिनेट. ओके, सेकंड हम डिस्कस करिया कहा ऊपर ना टू डायमेंशनल सिस्टम ऊपर बा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें जनरली प्लेन बोली रिप्रेजेंट करबा. टू डायमेंशन को हमें को टाइप रे रिप्रेजेंट करूछे ना जनरली प्लेन बोली हम रिप्रेजेंट करू. जेतले हम प्लेन कंसीडर करछे गोटे पेपर नियो बा तमर गोटे बुक नियो तार केतरा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूछी तीटा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूछी गोटे x कोऑर्डिनेट आ गोटे y कोऑर्डिनेट. ओके, जदी दुईटा कोऑर्डिनेट रो चेंजेस आसुची सेम हम फिगर ड्रा करबा. सपोज x y z coordinate nearly x that is y and that is z coordinate. okay, जदि x y z coordinate भितर मोर ऑब्जेक्ट जो अछि बा जो पार्टिकल रो मोशन टा हम कंसीडर करूचे से पार्टिकल रो मोशन टा को टाइप रे हम कंसीडर करबा ना गोटे प्लेन रे कंसीडर करबा. एटी मोर केतरा प्लेन क्रिएट होची ना एटा गोटे xy प्लेन कह जाय एटा हम कहबा xy प्लेन. ओके, एठी जो प्लेन टा क्रिएट हैला एटा को हम कहबा yz प्लेन. एठी जो प्लेन क्रिएट होची z और x रो कॉम्बिनेशन रे सेटा हला हमर zx प्लेन. zx प्लेन. ओके, तुम जो पेपर लेखुछ से पेपर को तुम इमेजिनेशन ले नहीं पारिबो. तुमर से बुक बा पेपर से केतरे कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूची ना गोटे लेंथ एग्जिस्ट करूची गोटे ब्रेथ एग्जिस्ट करूची. ओके, लेंथ रे गोटे एक्सिस नहीं जाओ ब्रेथ को गोटे एक्सिस नहीं जाओ तमने केतरा कोऑर्डिनेट सेट रहिला दुईटा कोऑर्डिनेट रहिला. सेही प्लेन रे बा तुम से खाता ऊपर
तुम कौन कर जेकोसी पॉइंट बा जेकोसी पोजीशन रे गोटे पॉइंट नियो ताको एक्सटेंड करो नॉट पैरेलल टू एक्स और वाई ओके जेमते से पॉइंट टा एक्स को पैरेलल रहिबोनी कि वाई को पैरेलल रहिबो नाही माने करो मैं एठी पॉइंट टा नेबी एक्स वाई प्लेन ऊपर ओके जदि मोर एक्स वाई प्लेन ऊपर गोटे पॉइंट नेली सपोज ए ओके जेतरे प्लेन ऊपर एग्जिस्ट करूची ताले तार केतरा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करिवो ना दुईटा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कला से दुईटा कोऑर्डिनेट कौन कौन ना x y ओके सपोज x रा असला मोर वैल्यू x1 y रे वैल्यू असला केते y1 z इज रिमेन अनचेंज काहे कि ना मैं तको मैं xy प्लेन ऊपर नै छ ओके यदि xy प्लेन ऊपर नेली ताले आइला x1 y1 एंड z जगह में लिखि परिबी 0 ओके सो फर्स्ट a रो जो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूची बा a रो जो स्थानांक एग्जिस्ट करूची x1 y1 0 ओके वर्तमान कोन करबा ना a को a पॉइंट रे भाबो गोटे जे कोन से पार्टिकल अछि और से पार्टिकल रो मोशन को हमें कंसीडर करबा नॉट पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू y एक्सिस जदी x और y को से पैरेलल आसीबनी सपोज हम एई टाइप रो तार मोशन को कंसीडर करबा ओके तले एठी जो न्यू कोऑर्डिनेट टा पाइली माने कर से पॉइंट टा को नै गेली b ओके तले तार कोऑर्डिनेट कोन आसीबो देखो x1 पॉइंट एबे चेंजेस होई छि न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट को सपोज एटा को नै गेली x2 सेम दोर y रो कोऑर्डिनेट चेंज होला ए पॉइंट टा माने कर आसीला मोर y2 ओके तले जो b रो जो न्यू कोऑर्डिनेट टा फॉर्मेशन होउछि b रो न्यू कोऑर्डिनेट टा केते आसीला ना x2 y2 0 0 कहीं कि ना हमें से प्लेन ऊपर मोशन करे छे जेतु प्लेन ऊपर मोशन करूचे ताले तर z कोऑर्डिनेट रे किछि चेंजेस आसिला नाही ओके ताले मोर रे दुईटा कोऑर्डिनेट ओनली एग्जिस्ट करला गोटे हला x1 आ गोटे हला y1 आ गोटे आसिला तमर x2 आ गोटे आसिला y2 ओके ताले एठी जो मोशन टा को हम कंसीडर करूचे जे कोनो जोटा पार्टिकल हो बा जे कोनो जोटा ऑब्जेक्ट रे जो मोशन कंसीडर करूचे से मोशन ले मोर ओनली दुईटा वेरिएबल चेंज आसुची गोटे हला x वेरिएबल आ गोटे हला y वेरिएबल ओके सो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट मींस इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू वेरिएबल मींस हमें तार दुईटा कोऑर्डिनेट को ही तार चेंजेस करबा तो कहे सारा में प्लेन रे न नै कि जदि प्लेन रो ऊपर नबा पैरेलल टू प्लेन जदि हम प्लेन रे न नै कि से पॉइंट ता तुम जो कहू छ हमें पेपर रे न ड्रा करके पेपर को पैरेलल करके किछि हाइट रे जदि ड्रा करबा ताले सेठी मोर कोन आसीबो ना z रो कोऑर्डिनेट रहिबो किंतु z कोऑर्डिनेट ता फिक्स रहिबो 0 न रहि कि सर्टेन वैल्यू आसे जिवो ओके जोटा कि मोर अनचेंज रहिबो बुझियला सो a आउट आसला कोन ना b कोऑर्डिनेट a कोऑर्डिनेट रे पोजीशन केते थिला x1 y1 0 b कोऑर्डिनेट रो पोजीशन आसला x2 y2 0 ओके तले चेंज जो आसला देखा x एक्सिस रे चेंज आसला एई वैल्यूटा मोर आसला x1 ओरिजिन पॉइंट ओरिजिन केते तमर अछि 0 0 0 एटा आसला तमर x1 और एई वैल्यूटा आसला केते ना x2 ओके समिते एपटे हम नबा y एक्सिस रे एटा आसला केते तमर y1 ए जो न्यू कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन हैला सेटा मोर हैला y2 ओके देखो चेंज कहार आसिला हम कहचे a पॉइंट रु b पॉइंट को चेंज हले मोर y1 टा चेंज हला y2 को x1 टा चेंज हला x2 को तले दुईटा कोऑर्डिनेट रो चेंज हेतु एग्जिस्ट करूची तले हम कहि पारे दैट इज ए टू डायमेंशनल मोशन बुझियला एबे कंसीडर करबा कोन ना थ्री डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन ले तुम एग्जांपल नै परिबो एग्जांपल नै परिबो ना मोशन ऑफ इंसेक्ट्स इन प्लेन ओके जेतो गोटे इंसेक्ट बा तुम सिंपली भाबो गोटे जंदा गोटे जेतो मोशन करता है तुम फ्लोर ऊपर तार मोशन टा कोन थाय ना रैंडम मोशन थाय ओके जेतो तार मोशन टा रैंडम अछि से गोटे प्लेन रे मोशन करूची ताल तार जेतो हम कोऑर्डिनेट ड्रा करबा से कोऑर्डिनेट को हमें टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रे ही रिप्रेजेंट करबा ओके जेतो गोटे इंसेक्ट मूव करे प्लेन ऊपर मोर ए जो वॉल अछि ए वॉल टा गोटे प्लेन नै जाओ
ए वॉल रे जतबे गोटे इनसेक्ट मूव करिवो ताको हम दीटा कोऑर्डिनेट रे ही मेजर करिया गोटे x कोऑर्डिनेट आ गोटे y कोऑर्डिनेट ओके त माने कह सर हम केवल कोन xy कोऑर्डिनेट रे मेजर करि परिबा कि xy कोऑर्डिनेट रे तमे चाहिले भी yz कोऑर्डिनेट रे मेजर करि परियो बट ईच केस रे तुम कोन करिया पड़ियो ना गोटे प्लेन रे मूवमेंट करिया पड़ियो तमे जतबे yz कोऑर्डिनेट को चेंज करेबो बा zx कोऑर्डिनेट को चेंज करेबो ताले सेतबे कोन ना सेही प्लेन रे हम मोशन करिबा नले पैरेलल टू दैट प्लेन ओके से प्लेन रे नहीं पारिबो नहले से प्लेन को पैरेलल करके हमें नहीं पारिबा दीटा जाक कोऑर्डिनेट को फॉर एग्जांपल देखो मोर एटा मन कर रहिला x एटा हला कोन y ओके माने एटा इमेजिन करो एटा मोर x कोऑर्डिनेट एटा हला मोर y कोऑर्डिनेट देखो गोटे प्लेन टाइप रो ऑब्जेक्ट नै छे जेटा दीटा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करछ गोटे x कोऑर्डिनेट आ एटा मोर y कोऑर्डिनेट ए x y कोऑर्डिनेट जते कोनोस गोटे प्लेन रे बा गोटे लाइन ड्रा करबी तले एटी मोर दीटा कोऑर्डिनेट रो चेंजेस आसीबो x रो आ y रो सिमिलरली जोटी मोर z होस 0 किंतु एई प्लेन को जदी पैरेलल करके आ गोटे प्लेन नै जेबे देखो एई प्लेन को पैरेलल करके आ गोटे प्लेन नै गली तले एई प्लेन को जदी पैरेलल नोची तले एटी मोर z कोऑर्डिनेट 0 आसीबो नाही z कोऑर्डिनेट 0 आसीबो नै काहे कि z रो वैल्यू एटी कि एग्जिस्ट करला किंतु जदि से पैरेलल प्लेन रे हमें गोटे ऑब्जेक्ट को मोशन करेबा जदि हम पैरेलल प्लेन रे से ऑब्जेक्ट को मोशन करेबा ताहले कोन आसीबो ना प्लेन ले जेहेतु ऑब्जेक्ट ता मोशन करूची ताल त z कोऑर्डिनेट देखो फिक्स अछि जेते दीटा जाको प्लेन पैरेलल रहूची तार z कोऑर्डिनेट कोन आसिला ना फिक्स आसिला एठी भी मोर z कोऑर्डिनेट जहा आसीबो या पई भी z कोऑर्डिनेट सेम आसीबो ओके से केस रे मोर कोऑर्डिनेट केमति आसीबो ना x1 जदि हम पैरेलल प्लेन कांसेप्ट को नै कि बाहर करबा तले मोर से केस रे कोऑर्डिनेट को टाइप रे आसीबो ना x1 y1 z ओके जदी a रो कोऑर्डिनेट आसिला x1 y1 z से केस रे मोर b रो कोऑर्डिनेट केता आसीबो ना b रो कोऑर्डिनेट हे जिवो x2 y2 z x2 y2 z आसी जिवो काहे दीटा जाक जो प्लेन अछि लोअर प्लेन सहित से पैरेलल रहउची आ जो हाइट रहिला xy प्लेन जोटी तमर z = 0 xy प्लेन जोड़ा पैरेलल रहउची तार z रो वैल्यू एग्जिस्ट करची त माने z रो वैल्यू हम नेले कोन ना सर्टेन वैल्यू दैट नॉट इक्वल्स टू 0 बुझियला एबे कंसीडर करबा कोन ना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ओके 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रे केतरा वेरिएबल एग्जिस्ट करिवो ना तीनटा वेरिएबल एग्जिस्ट करिवो देखो 1 डायमेंशन ले हमर आसिला x ओनली चेंज इन x ओनली चेंज इन x नेले 1 वेरिएबल जोड़ा को नेली x 2 डायमेंशन ले कोन नेले ना चेंज इन x एंड y चेंज इन x एंड y ओके 3 डायमेंशनल में कोन कंसीडर करबा ना तीनटा कोऑर्डिनेट को हमें चेंज करबा जेटा हम कहू 3 वेरिएबल्स x y और z को नेकी ओके 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट तुम इमेजिन करो ए जो प्लेन टाइट फॉर्मेशन हेची बा इटी जो कोऑर्डिनेट अछि हम घर रो कांथ जो अछि तार गुटे कॉर्नर को तुम ओरिजिन नै जाओ three-dimensional coordinate system okay so in case of three-dimensional coordinate system it mainly consists of three different variables okay three different variables माने कोन रहिला ना गोटे x रहिबो गोटे y रहिबो आ गोटे z रहिबो जो x y और z कोऑर्डिनेट रहउचे x y z तीनटा जाक कोऑर्डिनेट मोर कोन आसीबो ना चेंज आसीबो ओके फॉर एग्जांपल ए टाइप रो नियो तो जो घर अछि तार जे कोनो कॉर्नर को कौन करो ना ओरिजिन नहीं जाओ जे कोनो से कॉर्नर को तुम ओरिजिन नहीं जाओ तार कोऑर्डिनेट हला हमर 0 0 0 ओके देखो सेठी तीनटा प्लेन रो कॉम्बिनेशन अछि तीनटा प्लेन रो कॉम्बिनेशन अछि गोटे हला फ्लोर ओके गोटे फ्लोर रो कॉम्बिनेशन सेठी अछि ओके सेकंड हम कहू गोटे वन साइड ऑफ द वॉल आ गोटे कहू अनदर साइड ऑफ द वॉल तल जदी हम कोऑर्डिनेट नबा तने गोटे प्लेन हला हमर xy आ गोटे प्लेन आसला हमर yz आ गोटे प्लेन आसला तमरो zx ओके तो तीनटा एक्सिस फॉर्मेशन हला गोटे को नै जाओ x गोटे को नियो y गोटे को नियो z ओके एबे इमेजिन करो जो फैन लो पोजीशन ता अछि तो घरे जो फैन लो पोजीशन ता अछि देखो जेरा स्पेस रे अछि
जो फैन लो पोजीशन अछि देखो सेटा स्पेस रे अछि जेहेतु स्पेस रे अछि त मन से x रु किछि हाइट रहिला माने एई टाइप रे नेली मोर एटा हला फैन लो पोजीशन स्पेस रे अछि से पॉइंट हला मोर a फैन लो पोजीशन को नै जाओ ए पोजीशन नियो सेटा जेहेतु स्पेस रे अछि देखो से लोअर फ्लोर रु तळे जो फ्लोर ता अछि ताठु किछि हाइट रे अछि ओके तळ फ्लोर कोडा आसिला माने करे ए फ्लोर ता को नेली ओके एटा हला मोर तमे बसितबा फ्लोर रो कोऑर्डिनेट एटा हला तमरो फ्लोर ओके लोअर फ्लोर रु फैन लो पोजीशन किछि हाइट रे एग्जिस्ट करूची तले बे कोन करो ना से फैन रु उडे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दियो से प्लेन ऊपर को जो फ्लोर ऊपर त माने बसिछ से प्लेन ऊपर को तुम ड्रा कर दियो त माने किछि हाइट रु एबे कोठी के हम पळी आसिले ना से प्लेन ऊपर को पळी आसिले ओके फैन लो पोजीशन अछि स्पेस रे जो स्पेस रे अछि जे कोन से गुटे फ्लोर को बा जे कोन से गुटे प्लेन को तार परपेंडिकुलर ड्रा कर दियो माने करे हम लोअर फ्लोर को परपेंडिकुलर टे ड्रा कर देले लोअर फ्लोर को परपेंडिकुलर ड्रा कर देले जो हाइट ता पाइली ए कोऑर्डिनेट अनुसार सेठी मोर हाइट ता केते आसिला माने करे एठी मोर अछि y एक्सिस ओके तले ए जो हाइट ता आसुची माने करे सेटा हला मोर y ओके एबे कोन करबी देखो से को प्लेन को पळी आसिला पॉइंट ता ना zx प्लेन को पळी आसुची एबे पळी आसिला को प्लेन को ना z आ x प्लेन को पळी आसुची एबे कोन करो ना सही फ्लोर जो पॉइंट ता पाइलो सेठू x ऊपर को गुटे परपेंडिकुलर ड्रा करो y ऊपर को गुटे परपेंडिकुलर z ऊपर को गुटे परपेंडिकुलर ड्रा कर दियो ओके त माने ए जो पोजीशन ता आसिला a तले एठी रहिला x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट तीनटा जाक एग्जिस्ट करूची x कोटा आसिला ना तमर से प्लेन रे जो दीटा कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन हैला सेटा हला मोर x एटा हला x काहे केटा x रहूची एटा पैरेलल रहिला कहा को x एक्सिस को एटा आसिला मोर कोन ना z काहे कि ना एटा z को पैरेलल रहूची ओके ए जो हाइट ता आसिला एटा हला मोर y बुझियला फैन रो परपेंडिकुलर ड्रा करो प्लेन ऊपर को फ्लोर ऊपर को जोटा पाइलो सेटा हला तमरा हाइट एबे सेही फ्लोर रो दीटा जो कोऑर्डिनेट पाइलो प्लेन ऊपर ताकू परपेंडिकुलर ड्रा कर दे सेठी पाइ गेलो तमे दीटा कोऑर्डिनेट ओके एबे इमेजिन करो जे से पोजीशन ऑफ फैन को हमें डिस्प्लेस करबा पोजीशन ऑफ फैन को हमें डिस्प्लेस करबा नॉट पैरेलल टू x y और z कहा को हम पैरेलल करबा ने x को भी नुओ y को भी नुओ z को भी नुओ त माने एई टाइप रे हम मोशन करबा सपोज एठी मोर आसिला केते न्यू जो पोजीशन पाइली सेटा हला b ओके एबे कोन करबा ना से b पॉइंट रु जो न्यू पोजीशन ता पाइले से न्यू पोजीशन रु एबे कोन करो ना x को परपेंडिकुलर ड्रा करो से प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रा कर दियो प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रा कर देले एबे से पॉइंट ता पळी आसिला केते माने को से पॉइंट ता को नै गली b डैश ओके सेटा हम कहि बेरे तार इमेज पॉइंट b डैश ओके से b डैश पॉइंट रो x एक्सिस को परपेंडिकुलर और z एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ओके जो न्यू कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन होची सपोज फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमें x1 y1 z1 नै जबा फर्स्ट कोऑर्डिनेट अछि x1 y1 z1 नै गली सेकंड जो कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन हला b डैश पाई सेठी नै गली केते हाइट आसिला मोर y2 ओके पॉइंट ता कोठी के पळी आसिला प्लेन को आसिला परे न्यू पॉइंट पाइली b डैश ले x को परपेंडिकुलर ड्रा करो z को परपेंडिकुलर ड्रा करो x परपेंडिकुलर ता कहा को पैरेलल रहिला z एक्सिस को जेतु z एक्सिस को पैरेलल रहिला तार कोऑर्डिनेट हैला मन का लेंथ रहिला z2 ओके जोड़ा में z एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रा करले सेटा कहा को पैरेलल रहूची x एक्सिस को पैरेलल रहूची तन तार कोऑर्डिनेट हैला x2 तले बे मते को जो b पॉइंट ता हमें ऑब्जर्व करले स्पेस रे तार कोऑर्डिनेट कोन आसिला ना x2 y2 z2 x2 y2 z2 ओके एबे देखियो जो कोऑर्डिनेट रो चेंजेस ओके देखो z1 और z2 दीटा जाकर चेंज आसुची लेंथ वेरी करूची z1 लो लेंथ जहा अछि z2 रो लेंथ कोन सही आसिला कि जेतु सही आसुनी त माने एटी मोर कोन आसुची ना लेंथ वेरी कला x1 लो लेंथ जहा अछि x2 रो लेंथ से आसुची कि
एठी भी x2 रो लेंथ भी वेरी करूची एबे लक्ष्य करो y2 को y2 रो भी लेंथ वेरी करूची ताले एठी मोर जो कोऑर्डिनेट रो वेरिएबल आसिला x रो चेंजेस आसुची y रो भी चेंजेस आसुची z रो भी चेंजेस आसुची जेहेतु a रो b को मोशन पाई हमें तीनटा कोऑर्डिनेट रो चेंज पाउचे गुडे x कोऑर्डिनेट रो चेंज गुडे y कोऑर्डिनेट रो चेंज आ गुडे z कोऑर्डिनेट रो चेंज ताले ई टाइप रे हम कहि परिया मोशन को दैट इज ए 3 डायमेंशनल टाइप coordinate. Okay, so 3 dimensional coordinate means it mainly consists of 3 coordinates or it mainly consists of 3 variables x, y and z. बुझियला ना बुझि पल्लनी. So in case of 3 dimensional coordinate there are 3 variable 3 dimensional coordinate रो example कोन नै परिबा ना space. Space को हम कहउचे 3 dimensional object बा 3 dimensional coordinate. स्पेस रे जो कोन से ऑब्जेक्ट तमे ऑब्जेक्ट जदी इमेजिन नबो तमे भाबो गुटे स्फीयर भाबो बा गुटे क्यूब भाबो क्यूब रे केतुटा एक्सिस एग्जिस्ट करूची जदी हम क्यूब को कांसेप्ट को नबा क्यूब रो लेंथ एग्जिस्ट करूची ब्रेथ एग्जिस्ट करूची हाइट एग्जिस्ट करूची जेतु लेंथ ब्रेथ हाइट एग्जिस्ट करूची तले एटा कोन ना गुटे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किंतु जदी हम पीस ऑफ पेपर जब हम पीस ऑफ पेपर को कंसीडर करिबा पीस ऑफ पेपर केस रे कोन आसुची ना दुईटा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूची दुईटा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूची जदी जेहेतु दुईटा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करूची तले हम ता कहि परिबा कोन ना दैट इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ओके पीस ऑफ पेपर इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किंतु हम क्यूब नै परिबा गुटे स्फीयर नै परिबा स्फीयर केस रे हम कहू दैट इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइन को केमते कंसीडर करबा वन डायमेंशनल को टाइप रे हम ये नै परिबा गुटे थ्रेड को कंसीडर करो गुटे थ्रेड ओके दैट थिकनेस भी एक्सट्रीमली स्मॉल गुटे थ्रेड बा सिंपली गुटे लाइन ड्रा कर दियो लाइन ड्रा कर देला एटा गुटे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हे जाउची ओके सो वन डायमेंशनल तुम थ्रेड को एग्जांपल नै परिबो 2 डायमेंशनल ले पीस ऑफ पेपर और 3 डायमेंशनल पई क्यूब ओके बा ब्रिक्स को भी नै परिबो बा गुटे स्फीयर को कंसीडर करि परिबो दैट इज ए 2 dimensional 3 dimensional and 1 dimensional objects okay बुझियला कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके आउ थरा समरी करूची one dimensional coordinate means it mainly consists of one variable either change in x or change in y or change in z okay but हम एटे कंसीडर करछे कोन ना ओनली चेंज इन x को कंसीडर करले सेकंड कहू छे 2 dimension means it mainly consists of change in two variable जोड़ा हम कहू छे प्लेन रे मोशन आइदर xy प्लेन रे हो नले yz प्लेन रे हो नले zx प्लेन रे हो अदरवाइज पैरेलल टू xy प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन और पैरेलल टू zx प्लेन बुझियला 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कोन आसुची ना कंसिस्ट्स ऑफ 3 वेरिएबल्स ओके जरा हम कहू छे मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए स्पेस जदि गोटे ऑब्जेक्ट स्पेस रे मूवमेंट करूची ताले तार हम मोशन को कंसीडर करि परिबा दैट इज ए 3 डायमेंशनल टाइप मोशन ओके सो सेकंड पार्ट को आसबा जेटा हम कहू छे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रो सेकंड पार्ट जेटा हम कहू छे टाइम ओके और जेटा हम कहू छे वॉच ओके सो वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम डिफरेंस ओके वॉच को हम मेनली कोन यूज करू छे कोन पई यूज करू छे ना टू measure time difference to measure the time difference between any two events okay तले मैं मेनली एठी कोन कंसीडर करले ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने कोन जेटा हम कहू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जेता गोटे ऑब्जेक्ट को हम मोशन को कंसीडर करूचे मोशन केस रे हम मेनली दुईटा जिंस को मेजर करिया पई चाहूचे गोटे हला कोन ना तार पोजीशन बा तार कोऑर्डिनेट मेजर करिया पई चाहूचे आ गोटे हला टाइम मेजर करिया पई चाहूचे ता माने कोन टाइम होचे कहा पई ना जे कोनोसी दुईटा इवेंट भितरे जो टाइम डिफरेंस जे कोनोसी दुईटा इवेंट भितरे जो टाइम डिफरेंस अछि सेटा को हम मेजर करबा जे कोनोसी दुईटा इवेंट नियो माने कर हम जेमति काली एग्जाम देले तार गोटे टाइम डिफरेंस रहिला सेटा हम टाइम डिफरेंस यूज करले तुमको अगला गोटे एग्जाम पई गोटे टाइम 7:30 7:30 सेटा हम टाइम डिफरेंस ओके तले इवेंट को जेतबले टू इवेंट्स रो टाइम को मेजर करिया पई हमें वॉच रो यूज करूचे और पोजीशन को मेजर करिया पई तार कोऑर्डिनेट्स को यूज करछे जेला 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन ओके सेकंड को आसीबा एबे मोशन कोन और रेस्ट कोन
ओके मोशन कहले आम कौन बुझा और रेस्ट कहले कौन बुझा सेकेंड हूँ मोशन को आम केते पार्ट रे डिवाइड करूचे रेस्ट को आम केते पार्ट रे डिवाइड करूचे ओके ओके सो लेट्स नो व्हाट इज रेस्ट ओके रेस्ट कहले आम कौन बुझा जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज आसुनी टाइम अनुसार ओके डिफरेंट टाइम रे तुम आसिक कौन कर ना से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर ओके जेकोसी डिफरेंट टाइम रे तुम कौन कर मन कर गोटे ऑब्जेक्ट नहीं गली तुम भाव गोटे छोट ब्रिक्स गोटे पड़ी बाहर से ब्रिक्स रो कौन करवा ना आम डिफरेंट टाइम इंटरवल ऑब्जर्व करवा डिफरेंट टाइम इंटरवल ऑब्जर्व करले कौन आसीबो तुम एबे ऑब्जर्व करी जाओ से सही पोजीशन रे अछि किछि समय परे आसी देख पुणी सही पोजीशन ले थिबो किछि समय परे पुणी देख सही पोजीशन ले जेतु अछि ओके सो एज द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज द टाइम प्रोसीड्स देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट जदि कौन से गोटे वस्तु तार पोजीशन चेंज करू नाही समय अनुसार ताले से ऑब्जेक्ट को हमें कहि परिबा रेस्ट रे रही ओके सो रेस्ट मीन्स वी कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with time then we can say the object is at rest then we can say the object is at rest बुझेला जदि कौन से वस्तु समय अनुसार तार स्थान परिवर्तन करू नहीं ताले सेतेबेले से ऑब्जेक्ट को हमें कहबा से ऑब्जेक्ट कौन अछि ना रेस्ट अछि ओके रेस्ट को हमें कौन करले एबे दीटा पार्ट रे डिवाइड करबा ओके रेस्ट बा पोजीशन को जेतेबेले हमें फ्रेम अनुसार मेजर करबा ओके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमें कौन करबा ना गोटे रेस्ट फ्रेम कंसीडर करबा आ गोटे मूविंग फ्रेम कंसीडर करबा मूविंग फ्रेम माने कौन ना तार कोऑर्डिनेट को हमें चेंज करबा से फ्रेम को हमें चेंज करबा जेतेबेले गोटे फ्रेम चेंज होउची तान सेतेबेले हमें कहबा दैट इज ए मूविंग फ्रेम जदि गोटे फ्रेम रेस्ट रे अछि सेतेबेले हमें कहबा दैट इज ए रेस्ट फ्रेम ओके जदि गोटे ऑब्जेक्ट को कौन से फ्रेम सहित हमें कंपेयर करबा सेतेबेले हमें कौन कहउचे ना रेस्ट को हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड करछे गोटे हला एब्सोल्यूट रेस्ट ओके रेस्ट को हमें टू टाइप्स रे डिवाइड करछे इट इज two different types one is absolute rest okay another one is relative rest absolute rest another one is relative rest okay first देखा कौन absolute rest कौन आउट है रिलेटिव रेस्ट कौन ओके ओके देखो एब्सोल्यूट रेट मीन्स वी कैन से इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द ऑब्जेक्ट बोथ आर एट रेस्ट ओके फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने जोड़ा हम कहूचे सिंपली तमे नहीं पारिबो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पारो ना गोटे ऑब्जर्वर को तमे भी नहीं पारिबा ओके जदी ऑब्जेक्ट और फ्रेम दीटा जक रेस्ट रे एग्जिस्ट करूची ताल सेतबेले हम कहबा दैट इज ए माने कर जो ऑब्जेक्ट को तुम ऑब्जर्व कर जो ब्रिक्स को ऑब्जर्व कर तमे भी सेठी छिड़ा हिच माने कर तमर जो कोऑर्डिनेट को तुमको इमेजिन करने तमे जो पर्सन जे ऑब्जर्व करूची ताके माने कर भाबी दे से गोटे फ्रेम रे एग्जिस्ट करूची जदी से फ्रेम रे एग्जिस्ट करूची तमे भी सेठी रेस्ट रहो से ऑब्जेक्ट भी सेठी रेस्ट रहो ओके ताले सेठी कोन करबा ना से ऑब्जेक्ट को के ऑब्जर्व करूची ना तमे जो ऑब्जर्व करूछो से ऑब्जेक्ट सही पोजीशन रे तमे भी रहो से ऑब्जेक्ट भी सही पोजीशन ले एग्जिस्ट करू ओके जेतु एबे कोन कहूचे ना if
both the frame of reference if both the frame of reference and the object are at rest, then it is called absolute rest. ओके जदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और से ऑब्जेक्ट को हम कोन कहछे ना दीटा जाक थिंग्स को हम रेस्ट रखुचे देन दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट. ओके सेकंड थिंग्स हम कोन कहबा इफ वी ऑब्जर्व ए प्रैक्टिकल थिंग जदि हम प्रैक्टिकली कांसेप्ट कहबा प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल. ओके जदि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करबा प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ जदि हम कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करछे कोऑर्डिनेट आइड किए ना अर्थ को हम नहीं पारे जो जो पोजीशन में छिड़ा आइछे कहा ऊपर छिड़ा आइछे ना अर्थ ऊपर छिड़ा आइछे जेतु अर्थ ऊपर अच्छे ताले अर्थ रा सेल्फ गुडे कोऑर्डिनेट मते को अर्थ रा रेस्ट अछि ना मोशन ले अछि अर्थ रा मोशन ले जो अछि. ओके जेतु मोशन ले एग्जिस्ट करूछे अर्थ ताले हम से केस रे कहि परिबा जेतु हम अर्थ ऊपर कोनोस गुडे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करिबा. ओके ताहले हम फील करूछे कोन हमें तो अर्थ ऊपर छिड़ा हिसे हमें फील करूछे हमें रेस्ट अच्छे किंतु एक्चुअली में रेस्ट अच्छे कि हमें मोशन करूछे काहे कि ना अर्थ जेतु मोशन करूछे हमें अर्थ सहित ही मोशन करूछे. ओके सो द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल. ओके सो हियर वी कैन राइट प्रैक्टिकली नोट रे लिख दे पारो एटा प्रैक्टिकली absolute rest the concept of absolute rest is not possible because earth is in motion. ओके अर्थ इज इन मोशन जेतले कोनोसी गुडा ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करूचे हमें अर्थ रो ही मेजर करूचे जेतो अर्थ रो मेजर करूचे अर्थ मोर मोशन ले एग्जिस्ट करूची तले एब्सोल्यूट मोशन एब्सोल्यूट रेस्ट द कांसेप्ट जो आसुची दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके जले हम कहूचे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट रहिबा दरकार ऑब्जेक्ट भी रेस्ट रहिबा दरकार जदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इडी इमेजिन करबी अर्थ. ओके जोडा के हमें मेजर बेले भाबुचे रेस्ट अछि किंतु एक्चुअली एटा रेस्ट अछि कि जदि मोशन रे रहउची तले हम कहि पारे दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल. ओके सेकंड आसीबा कोन ना रिलेटिव रेस्ट. Relative rest. Okay relative rest means if the frame of reference and the object both are moving with same velocity. Okay if the frame of reference and the object both moves with some velocity then we can say then it is called relative rest. देखो बोले एटा प्रैक्टिकली नबा. ओके एटा हम कोन कहउचे ना इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द ऑब्जेक्ट ओके फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द ऑब्जेक्ट both are moving with same velocity.
ओके जो सेम वेलोसिटी हम ऑब्जर्व करबा कहार ना फ्रेम रो आउ से ऑब्जेक्ट रो से कौन आसो ना जो मोशन सिंपली गोटे एग्जांपल को नबा मन कर बस रे जाइथिबो केते बेले जो बस रो मोशन नौचे बस रे मूव करूचे मन कर तुम विंडो पाख सीट रे बसीच ओके जो विंडो पाख सीट रे बसीच एबे इमेजिन कर तुम जो फ्रेम रे अच्छो से बस रे बसीच सेटा हला गोटे फ्रेम हला जो बस रे तुम विंडो पाख सीट रे बसीच से बस टा हला तुम फ्रेम तुम जो सीट रे बसीच तुम जन ऑब्जर्वर ओके एबे इमेजिन कर तुम पाखरे सेम डायरेक्शन रे सेम स्पीड रे आउ गोटे बस मोशन करूची ओके तमे जाउथवा बस रो डायरेक्शन रे आउ गोटे बस सेम स्पीड रे मोशन करूची तम बस रे जति स्पीड अछि से ऑब्जेक्ट रो भी सेम स्पीड अछि माने तार विंडो पाखरे आउ जने पिला बसिची ओके एबे देखो तमे जो फ्रेम रे अछो से भी मोशन रे अछि से जो ऑब्जेक्ट रे अछि से भी डिफरेंट से भी कोन अछि ना से मोशन रे अछि किंतु दी जनकर कोन अछि ना वेलोसिटी जेतु सेम अछि देखो तुमको से केमिति देखा जीवो तुमको देखा जीवो जे तार जो बस टा मूव करू नाही से लोकोटी कोन अछि ना रेस्ट अछि एट द सेम टाइम जदी से लोकर ऑब्जर्व का में ऑब्जर्व करबा से लोकर ये को हम ऑब्जर्व करिया से पिला भी देखुथबो कोन ना तमरो जेतु बस टा सेम स्पीड रे अछि तल से भी देखुथबो जे ये पिलाटी काहे की मूव करू नाही देखो दीटा जाक ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करिया जेतु से माने सेम वेलोसिटी रे मूवमेंट करूचंती ताहले दी जण कोन लागुथबो ना बस टी रेस्ट अछि चालू नाही बा दीटा जाक कोन अछि ना रेस्ट अछि काहे के एमते ऑब्जर्व हुए ना जेहेतु से मानकर वेलोसिटी अछि कोन ना सेम अछि ओके तमे जो बस रे अच्छो से बस रो डायरेक्शन रे आउ गोटे ऑब्जेक्ट आउ गोटे बस सेम स्पीड रे सेम डायरेक्शन ले जाउची जे तुम विंडो पाख बसीच तले तमे तो विंडो पाख बसते आर बस रो जो पिलाटी ताको ऑब्जर्व करबो केमिति ना से रेस्ट अछि तमे भी रेस्ट अच्छो किंतु एक्चुअली कोन होउची ना दी जन जाक मोशन रे अच्छो किंतु दी जन को मोशन कोन अछि ना जेतु सेम स्पीड रे अछि ताहाले हमें दी जन जाक कोन देखिबा ना रेस्ट टाइप रो ऑब्जर्व करबा ओके सो रिलेटिव रेस्ट मींस इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the object are moving with the same velocity then that is called relative rest okay then का आसबा कोन ना मोशन को कांसेप्ट ऑफ मोशन okay so what do you mean by motion if an object changes its position with time if an object changes its position with time then the object is said to be in motion then the object is said to be in motion okay गोटे ऑब्जेक्ट केतेबेले मोशन रे अछि जानिबा जदि से ऑब्जेक्ट तार पोजीशन चेंज करूची ओके समय अनुसार तार पोजीशन को चेंज करूची ताहले हम सेतेबेले कहि परिबा से ऑब्जेक्ट केमिति अछि ना मोशन रे अछि ओके एग्जांपल लेई परिबो गोटे कोन ना बर्ड फ्लाइंग बर्ड ओके जेतले गोटे बर्ड को तुम ऑब्जर्व कर देखो बर्ड जे तो फ्लाइंग पोजीशन रे अछि तमन त पोजीशन टा रेगुलरली चेंज आसुथबो ओके जेतु पोजीशन टा रेगुलरली चेंज आसुची तले हम कहि पारे से ऑब्जेक्ट टा कोन अछि ना मोशन रे एग्जिस्ट करूची बुझियला इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ द टाइम देन we say the object is in motion okay similarly we divide motion into two parts okay motion को हम सेमती two part divide करूचे it is two types okay that is absolute motion
absolute motion. Second कौन आसीबा ना relative motion. Absolute motion आउट नउचा में relative motion. First देखबा कौन ना absolute motion को. Absolute motion. Okay, so when we consider the case of absolute motion, then we can say if the frame of reference is at absolute rest. Okay, frame of reference को कौन करिबा हमें absolute rest रे रखिबा and the object is in motion. Okay, if the frame of reference is at absolute rest and the object is in motion, then it is called absolute motion. Absolute motion. Okay, ताले एटी कोन आसीबो ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोन आसीबो रेस्ट आसीबो ऑब्जेक्ट ता कोन रहिबो मोशन रे रहिबो सेही बर्ड रो फ्लाइंग बर्ड रो एग्जांपल नबा एटी तेतबे तमे जो फ्रेम रे अछ मन कर अर्थ को कंसीडर करो तमे जेतु अर्थ ऊपर छिडा हिचो ताले अर्थ रो जति गुटे फ्रेम हुए जोटा रेस्ट अछि आ से बर्ड ता कोन हुए मोर ऑब्जेक्ट हुए ताले तमे कोन ऑब्जर्व करूछो ना बर्ड ता मूव करूची जेतु बर्ड मूव करूची तमने बर्ड रो पोजीशन को तमे चेंज करूछो किंतु तमरो पोजीशन चेंज का पे ऑब्जर्व करले कि तमको काहे की चेंज करने तमे गछो एब्सोल्यूट रेस्ट रे. ओके, जेतु तमे एब्सोल्यूट रेस्ट रे अछ बा अर्थ ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन ले अछ तले तम पोजीशन आसिले रेस्ट. ओके, जो बर्ड ता मूवमेंट करूची बर्ड कोन करूची ना तार पोजीशन चेंज करूची जेतु बर्ड तार पोजीशन चेंज करूची with respect to earth, then that is called absolute motion. Okay, so in case of absolute motion the frame of reference is at absolute rest and the object is in motion. Object ता कोथरे रहिबो ना मोशन रे रहिबो, then that is called absolute motion. Second देखिबा कोन ना relative motion. Relative motion. Okay, relative motion. So in case of relative motion we have to consider that both the frame of reference and the object moves with different velocity. Okay, relative motion means if the frame of reference and the object, okay, if the frame of reference and the object both moves with different velocity, then it is called relative motion. Then it is called relative motion. Okay, example नवा रिलेटिव रेस्ट केस रे हमें दीटा जो बस नहीं थिले से दीटा जगह में सेम स्पीड रे सेम डायरेक्शन ले मूवमेंट करथिले. एबे इमेजिन करो जो सेकंड बस ता अछि से सेकंड बस ता कोन आसुची ना तमरो अपोजिट रो आसुची. ओके, तमे गोटे डायरेक्शन ले जाउछो सेकंड रे जो ऑब्जेक्ट अछि से तमरो अपोजिट रे आसुची. ओके, जेतु से अपोजिट रे आसुची तुमको से केमिति क्रॉस लागिवो तुमको लागिवो से सेकंड बस ता बहुत अधिक स्पीड रे क्रॉस कर माने दीटा जाकर स्पीड सेम अछि ये भी 50 किलोमीटर पर आवर अछि सेकंड बस भी कोन अछि ना 50 किलोमीटर पर आवर रे भी अछि.
ओके जेहेतु दीटा जाक बस अपोजिटली एबे मूवमेंट करूछंती गोटे मूवमेंट करूची वन डायरेक्शन सेकंड मूवमेंट करूची ता अपोजिट डायरेक्शन रे देखो बस दीटार स्पीड सेम अछि ओके किंतु एठी जत हम ऑब्जर्व करूचे अपोजिट डायरेक्शन को नेकी सेकंड बस रे कोन आसी जिवो जो ऑब्जेक्ट बा सेकंड बस रो विंडो पाखरे जो पिलाटा बसिची से पिलाटार स्पीड केते आसीबो तुमको लागियो से बहुत सडनली क्रॉस कर जाउची काहे कि ना तर रिजल्टेंट स्पीड जो आसे 100 किलोमीटर पर आवर जत गोटे ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन ले मूवमेंट करूची ताले से केस रे तार स्पीड केते ही जाउची ना 100 किलोमीटर देखो तमर स्पीड केते अछि 50 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जेक्ट रो स्पीड केते ही गला 100 किलोमीटर पर आवर तल जेते बळे दीटा जाक ऑब्जेक्ट कोन आसुची ना डिफरेंट स्पीड रे मूवमेंट करूची बा फ्रेम एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी then we can say that is relative motion okay frame को भी मूवमेंट करेबा सम वेलोसिटी रे ऑब्जेक्ट को भी मूवमेंट करेबा आ गोटे वेलोसिटी रे तल सेतले हम कहि परे that is the relative motion okay बुझियला रेस्ट an object when does not change its position with time then that is called rest rest is two different types one is absolute rest and another one is relative rest okay absolute rest means the object and the body the object and the frame of reference both are at the state of rest okay which is practically not possible okay second thing हम कहूचे कोन absolute motion when the object and the frame both are moving with the same speed then that is called relative rest okay motion को सेम हमें दुईटा पार्ट डिवाइड करछे गोटे absolute motion out relative motion कौन ना if an object change its position with time then that is called then the object is called in motion okay सेटा हमें दुईटा पार्ट डिवाइड करछे गोटे हला absolute motion out relative motion absolute motion means the frame must be at absolute rest and the object is in motion then that is called absolute motion okay second things हम कौन कहउछे ना relative motion means the object and the frame both are moving with different velocity then that is called relative motion okay so this is all about for today's session okay so in next class we will discuss about the inertia and the different characteristics of inertia okay thank you